see a chart here. I've made a chart. Three quantities we have learned: normality, molarity, molality. The symbol for normality is N. You should read it as normal. And the unit is number of equivalent per dm cube or liter. For molarity, the symbol is capital M, which you should read as molar, and the unit is moles per dm cube. And for molality, the symbol is small m, you should read it as molal, and the unit is moles per kg. One more very important topic as far as your entrance is concerned, if I may write something like this: Dc normal. What do you mean by this? This is a prefix use, Dc. This means 0.1 normal, which can be written as 10 raised to minus 1 normal, or it is n by 10 normal. These are just the different ways of writing it. The meaning is the same. On the same lines, you can have centi normal. Centi normal is 0.01 normal, 10 raised to minus 2 normal, or n by 100 normal. Then we can have milli normal, which is 0.001 normal. Correct now? We can have semi-normal. What do you mean by semi-normal? It is 0.5 normal. That is half normal. So we can write it as n by 2. So these are the prefixes: deci, centi, milli, semi. These are the prefixes which can be used for molarity and molality as well. We can have decimolar, centimolar, and so on. The fourth way of expressing concentration is percentage. We have seen normality, molarity, and molality. We have also seen their correlation. And now the fourth one is percentage. It's just percentage. The base value is 100. Just the way we calculate percentage in mathematics. Here we can express concentration out of 100, that is percentage. So there are various ways of expressing percentage. The first one of this type is percentage by mass of the solute, obviously, weight by weight. This is the symbol, and this you should read as weight by weight. What does that mean? Weight of the solute upon the total weight, that is weight of the solution, which is addition of solvent ka weight and solute ka weight. Weight of solvent plus weight of solute, this is weight of solution into 100. So this becomes a formula. इतने solution के weight में इतना solute है तो 100 में कितना. So that makes it weight by weight, right? यहाँ पे भी weight है और नीचे भी weight है. ये जो लिखा है इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, जैसे 4.5% बाय मास, ऐसा अगर आपको दिया होगा ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट का ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सॉल्वेंट का तो 100 में से माइनस करके आ जाएगा ना, किसी एक का निकालेंगे तो भी चलेगा. इसका इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है ना, इसके लिए आपको ऐसे शुरुआत करनी चाहिए. लेट द मास ऑफ द सोल्यूशन, जो टोटल होता है, सोल्यूशन इज टोटल ना, सॉल्वेंट और सोल्यूट के मास का, उसको 100 लेना चाहिए. मतलब इस फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर में आएगा ना, वो यहाँ पे आता है, राइट? ये मास है, इसके लिए ग्राम लिया. तो आपको कितना परसेंटेज लिया है? 4.5%, मतलब 4.5 आउट ऑफ 100. मतलब सोल्यूशन अगर 100 ग्राम्स रहेगा तो उसमें सोल्यूट 4.5 ग्राम्स है. सो दिस इज बेसिकली द वेट ऑफ द सोल्यूट. So what will be the weight of solvent? Obviously 100 minus 4.5, and that will be 95.5 grams. ये इसका interpretation है. So this will be used as a hidden data. Percentage में second आता है percentage by mass of solute, weight by volume. फर्क यहाँ पे है. Percentage ये mass ही है, percentage by mass solute का ही है. तो ये weight of solute आएगा, लेकिन ये volume of solution है. इसके लिए फॉर्मूला ऐसा है: weight of solute upon volume of solution. This is volume of solvent plus volume of solute. यहाँ पे volume additive हमने assume किया है, practically होता नहीं है. तो पूरे solution के volume में अगर इतना ग्राम solute है तो 100 में कितना, इस तरीके से निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 4.5% by mass of solute, weight by volume दिया रहेगा, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना चाहिए?
लेट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बी 100, है ना। जनरली यहाँ पे जो होता है, मैंने कहा वही यहाँ पे लेते हैं अजम्पशन में 100 मिलीलीटर्स। तो अगर वॉल्यूम का, पूरे वॉल्यूम का सोल्यूशन 100 मिलीलीटर्स है तो उसमें 4.5 ग्राम्स सोल्यूट का वेट है, तभी तो 4.5% कहलाएगा। 4.5% मीन्स व्हाट, 4.5 आउट ऑफ 100 मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशन में 4.5 ग्राम्स सोल्यूट होना चाहिए। इस केस में W1 नहीं आ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वॉल्यूम में से मास माइनस होता नहीं है। ये सेकेंड में है। और एक तरीका है परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो देख लेते हैं। परसेंटेज में तीसरा तरीका देखते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट का वॉल्यूम दिया गया है, परसेंटेज किस में, तो पूरे वॉल्यूम के सोल्यूशन में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसा लिखा जाएगा। एंड द फॉर्मूला फॉर विच इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100। पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम में इतना सोल्यूट का वॉल्यूम है तो 100 में कितना। तुरंत एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4.5% बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें ये लेना चाहिए लेट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, है ना, ये जो डिनोमिनेटर है वही लेना चाहिए। टोटल सोल्यूशन है इस चैप्टर में, वो 100 मिलीलीटर्स लिया, तो 100 में 4.5% मतलब 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में 4.5 मिलीलीटर्स ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इसका डिफरेंस आएगा विच विल बी 95.5 मिलीलीटर्स। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम एडिटेटिव ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ये तीसरा तरीका है। वेरी ऑफन स्टूडेंट्स आस्क मी कि इन क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आपको वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम नहीं दिया, जैसे मैंने अभी सिंबल्स लिखे, तो क्या करना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए। जैसे मान लो आपको मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलारिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ही लेना चाहिए, करेक्ट ना। अगर आपको मोलारिटी पूछा है, व्हाट इज इट, weight of solute upon molecular weight of solute into weight of solvent in kg, तो इसके लिए weight by weight ही इंटरप्रेट करना चाहिए। मोलारिटी पूछा है और weight by वॉल्यूम निकालेंगे तो W1 तो आएगा ही नहीं, करेक्ट ना, weight of solvent के लिए, है ना। इसके लिए जो क्वेश्चन है उसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से लेना चाहिए। दिस इज weight by वॉल्यूम, दिस इज weight by weight। Let us see a sum based on percentage. Calculate the molarity of 4.9% dissociated sulfuric acid solution having a density of 1.92 grams per centimeter cube. So what I am supposed to find is molarity. You know what is the formula for molarity? You know what is the formula for molarity? I am just writing it here. It is the weight of the solute upon the molecular weight of the solute into volume in centimeter cube. रहेगा क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 आएगा। सो व्हाट यू वांट इज W2, M2 एंड ऑल, तो यू नीड टू इंटरप्रेट दिस 4.9%। कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। 4.9% का इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे लूंगा, लेट द मास ऑफ द सोल्यूशन बी 100 ग्राम्स। तो इसके लिए 4.9 जो परसेंटेज है उतना ग्राम शुड बी W2, करेक्ट। तो मैंने ये क्या लिया, वेट बाय वेट लिया, करेक्ट। तो इससे मुझे W1 मिल सकता है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं, मैंने मोलारिटी पूछा नहीं। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने को निकालना मोलारिटी है और मोलारिटी की रिक्वायरमेंट वेट बाय वॉल्यूम है, तो मैंने वेट बाय वेट क्यों लिया है। याद रखना मैंने जानबूझ के ये सम लिया है कि मोलारिटी की रिक्वायरमेंट वेट बाय वॉल्यूम होते हुए भी मैंने वेट बाय वेट इंटरप्रिटेशन इसके लिए लिया है क्योंकि आपको डेटा में डेंसिटी दिया गया, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, उससे वॉल्यूम निकाला जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, शुड बी मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी, इससे निकालना है। तो याद रखना ये हिंट है, डेंसिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम इसी तरीके से निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम अज्यूम मत करना, राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू हियर। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम्स है और डेंसिटी है 1.92, ऐसे, है ना, ये ग्राम्स है और ये ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे, तो ग्राम्स जाएगा, इसके लिए इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे ही रख के मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वॉल्यूम में,
तो अपने को W2 मिल गया है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन भी मिला है, और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट तो 98 आएगा क्योंकि सोल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मोलारिटी निकालते हैं, देयरफॉर मोलारिटी W2 इज 4.9। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 98 बराबर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो हमने निकाला है 100/1.92, तो 1.92 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड बाय फॉर्मूला का 1000 क्योंकि वॉल्यूम cm क्यूब में है ऐसे। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दिस इज गॉन करेक्ट। 4.9 इंटू 10 इज 49, तो ये 49 टूजा हो गया, तो बेसिकली यू आर लेफ्ट विथ 1.92/2 which will be 0.96 मोलार। मोलार मतलब मोल्स पर डीएम क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो सम हमने किया है उसका JEE और नीट का शॉर्टकट मैं आपको सिखा रहा हूँ। JEE या नीट MCQ सॉल्व करते हो कौन सा शॉर्टकट लेना चाहिए। एक सुपर फॉर्मूला है मोलारिटी के लिए, इट इज परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इससे डायरेक्ट लास्ट स्टेप आपका आंसर आएगा। जैसे इस समय परसेंटेज आपको दिया गया है 4.9, डेंसिटी दिया गया है 1.92, फॉर्मूला का 10 अपॉन मोलर मास इज 90। तो कैन यू सी दैट कम हियर, ये स्टेप आया कि नहीं, डायरेक्टली सीधा आया, आंसर वही आने वाला है ना। ये जाएगा और ये वाइस आएगा 1.92/2, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सी द नेक्स्ट सम, calculate the normality of 4.9% dissociated H2SO for a solution having a density of 1.92 grams per centimeter cube। तो यहाँ पे पहले हम लोग ऐसे शुरुआत करते हैं, let the mass of the solution be 100 grams, so obviously 4.9 grams should be the mass of the solute। W1 की जरूरत नहीं है, मोलारिटी पूछा नहीं है। और फिर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। मास इज गिवन एज 100 ग्राम्स एंड डेंसिटी इज 1.92, इसको ऐसे ही रखेंगे जिससे सेंटीमीटर क्यूब। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 4.9, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आता है 49 है ना। मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100/1.92, ये ऊपर जाएगा ऐसे into 1000, ये होगा। सो दिस इज गॉन 4.9 into 10 is 49, तो ये पूरा गया। योर आंसर इज 1.92 नॉर्मल ऐसे, जिसके लिए JEE और नीट का एक शॉर्टकट बताता हूँ सुपर। अभी जैसे मोलारिटी का बताया था वैसे ही है, नॉर्मेलिटी इज परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसके पहले जो मोलारिटी का बताया था उसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ नीचे इक्विवेलेंट वेट है। परसेंटेज दिया है 4.9, डेंसिटी दिया है 1.92 इनटू फॉर्मूला का 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज 49। तो ये गया कि नहीं, और बचा क्या 1.92 नॉर्मल। इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। Let's see a fantastic sum here. Let there be a solution of urea having its molality equal to molarity. Which of the following is the correct way of expressing its density? And we are given 4 options here. I'm solving it here. Please pay your attention. This is the formula you should use for the entrance exam. Molality is equal to 1000 into molarity upon 1000 into density minus molarity into molar mass of the solute। solute यूरिया है, and since we are given that molality is equal to molarity, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट में इस तरफ लाऊंगा, यहाँ पे 1 आएगा। यू हैव 1000 into D माइनस मोलारिटी का m वैसे रहेगा, m2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यूरिया का मोलर मास 60 आता है, into m is equal to 1000 ऐसे। So what will be density from here? It's going to be 1000 plus 60 molar upon 1000, correct? So density will be, अगर मैं डिनोमिनेटर को आइसोलेट करता हूँ तो 1 plus 60 into molarity upon 1000 ऐसे आएगा। इसको रिड्यूस करता हूँ तो 1 plus
में ये जाएगा अपॉन 50. सो दिस इज गोइंग टू बी 50 प्लस 3 इंटू मोलैरिटी अपॉन 50. ये आपका आंसर है. दैट मीन्स इट इज योर सेकेंड ऑप्शन. The fifth way of expressing concentration is mole fraction. And in this, the first one is mole fraction of solute. The symbol for mole fraction is x और solute है इसके लिए x2. The formula for which is n2 upon n1 plus n2. Next is the mole fraction of solvent. What should be the symbol? Obviously it has to be x1 and this time it should be n1 upon n1 plus n2. n1 plus n2 total number of moles है solution का. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है. करेक्ट ना? तो ये फ्रैक्शन है. Isn't it a fraction? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. समझता है? सॉल्वेंट है और सल्यूट का ये. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? It has to be x1 plus x2, which will always be 1. है ना? इन दोनों का टोटल करके देखो, आंसर 1 आएगा. तो सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है. Let's see a sum based on mole fraction here. Calculate the mole fraction of a 2 molar aqueous solution. And what should be the answer? The answer should be obviously 1. ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोला है? सोल्यूशन. 2 मोलर लो या कितना भी हमेशा 1 ही होता है. हमने देखा है यहाँ पे. यू सी दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज 1. करेक्ट है ना? ये क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़ा रिपेयर करता हूँ. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सल्यूट. अभी देखो सल्यूट है इन इट्स 2 मोलर एक्वियस सोल्यूशन. अब आंसर 1 नहीं आएगा. इसके पहले ये नहीं था, मैंने सिर्फ सोल्यूशन का पूछा था तो 1 आएगा. लेकिन अभी सल्यूट का पूछा है, अभी आंसर 1 नहीं आएगा. अभी इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. ओके, 2 मोलर एक्वियस सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? एक्वा मतलब वाटर, सॉल्वेंट है. 2 मोलर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स 2 moles of solute are present in 1 kg of solvent. ये मोलालिटी का डेफिनेशन है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. लेकिन सॉल्वेंट वाटर है. कैसे समझा? ये एक्वियस दिया ना, इसके लिए सॉल्वेंट सीधा वाटर दिया है. तो व्हाट इज दिस बट n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ये हो गया 2 मोल्स. करेक्ट ना? और n1 मोल फ्रैक्शन के लिए n2 n1 लगता है कि नहीं? दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट तो वाटर है और वाटर का वेट कितना दिया? 1 kg. लेकिन मैं वो 1000 में ले रहा हूँ ये ऐसे, क्योंकि मोलर मास जो है वाटर का 18 ग्राम्स पर मोल में है. तो ये 1 kg नहीं, उसका 1000 लेना पड़ेगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी मोल. n1 n2 आ गया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है? n2 अपॉन n1 प्लस n2. व्हाट इज योर n2? इट इज 2 अपॉन n1. n1 इज 1000 बाई 18 प्लस 2. तो ये 18 ऊपर जाएगा यहाँ पे. करेक्ट है ना? 36 हो जाएगा. सो दिस विल बी 1036 और 18 ऊपर भी आएगा. ये आपका आंसर है. अब एंट्रेंस में अगर ऐसा आंसर आया तो पहले ऑप्शन चेक कर लेना कहीं आंसर यहीं तो रखा नहीं है. इसको सीधा डेसिमल में शिफ्ट मत करना. अगर करना ही है ना, तो इसका अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूँ. जिस ईयर 36 अपॉन 1036. दैट शुड बी 36 अपॉन 10. ये 1000 लेके ऐसा आप कर सकते हैं. ये ऑलमोस्ट इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? 0.036 ऐसा. लेकिन आपका आंसर ये नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है. ये आपका आंसर है. इसमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है. इसमें ये 36 यहाँ पे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो रेशो छोटा, मतलब आपका एक्चुअल आंसर ये नहीं, इससे थोड़ा कम आएगा. समझ में आ रहा है? इस तरीके से अंदाजा लगाना चाहिए, है ना. और मैं एंट्रेंस के लिए आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ. सेम सम का आप समय इससे बचा सकते हैं. इट्स अ सुपर्ब शॉर्टकट. मोल फ्रैक्शन के लिए है mm1
अपॉन 1000 प्लस mm1 है ना। m मतलब मोलारिटी जो आपको दिया गया है 2, m1 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया गया है 18, तो ऊपर आ गया 36, और mm1 वापस 36 प्लस 1000 इज 1036। तो आंसर मैच कर रहा है फिर जस्ट हियर ये आया इधर आंसर, एक स्टेप में आ गया। इट्स अ सुपर्ब शॉर्टकट। The next, sixth and the last way of expressing concentration is parts per million. This is the industrial way. This way of expressing concentration is used only at the large scale, not at the laboratory method. Famously, it is called as ppm, which is weight of solute. This is a formula upon the weight of the solution, solvent plus solute, into 10 raised to 6. This is 1 million. So this is basically the formula. परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 था, अब यहाँ पे बेस वैल्यू 1 मिलियन का है, 10 raised to 6. दिस इज 1 मिलियन. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. इसका एक सम देख लेते हैं फिर. ओके, सी द सम बेस्ड ऑन पार्ट्स पर मिलियन. A 15 ppm sample of drinking water was found to be contaminated by chloroform. Calculate the percentage by mass of chloroform, weight by weight, and molality. Contamination means impurity, impurity means solute. So chloroform is basically solute. So I'm just showing you how to find out this thing. First thing first, let's write down the formula for ppm. W2 upon W1 plus W2 into 10 raised to 6. 15 ppm is what you are given. I'm just going to make a small modification here on the right hand side. This is what it is. 10 raised to 6 can be written like this. Correct? Now if you see, this is basically percentage by mass only. Correct now? Percentage by mass of the solute. Solute is chloroform, CHCl3 into 10 raised to 4. This is 15. So what will be this? Ultimately we got the answer. Percentage by mass of chloroform will be 15 upon 10 raised to 4. That is 15 into 10 raised to minus 4%. It is that simple. So we got the answer for the first part. Correct. Second part is molality. I'm writing the formula here for molality. The second part, molality. What is the formula? It is the weight of the solute upon the molar mass of the solute divided by weight of solvent in grams multiplied by 1000. So what we need is W2 and W1 है ना, जिसके लिए हम लोग ये जो परसेंटेज का आंसर आया ना पार्ट 1 का, ये इसको इंटरप्रेट करेंगे वेट बाय वेट उन्होंने दिया है ना. सो आई एम गोइंग टू यूज दैट. कैसे यूज करते हैं? ऐसा अपना अजम्पशन से, लेट द मास ऑफ द सोल्यूशन बी, कितना लेते हैं? 100 ग्राम्स. करेक्ट हो ना? इसके लिए W2 क्या लेंगे? 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, जितना भी परसेंट है उतना ग्राम्स. तो W1 क्या आएगा? इट हैज टू बी 100 माइनस 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मतलब 0.0015, which is approximately 100 only. You are allowed to take because it's a very small number. नेग्लिजिबल है तो मैंने निग्लेक्ट कर दिया. तो W2 W1 आ गया जिसकी जरूरत है. अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. व्हाट इज W2? इट इज 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट क्लोरोफॉर्म है, उसका मोलर मास आएगा 119.5 एटॉमिक मास से ऐड करने का. W1 आया 100. सो दिस इज गॉन, this into this. So you are ultimately left with 15 into 10 raised to minus 3 upon 119.5. Calculation का approximation सिखा रहा हूँ. This is I can take as 15 into 10 raised to minus 3 upon 120. और 15 8 जा 120 होता है. So basically this is 10 raised to minus 3 upon 8, which will be 0.125 into 10 raised to minus 3. या डेसिमल शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं. ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन ही आपका आंसर है. दोनों रेशियो में न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो रेशियो छोटा, मतलब ये आएगा. मतलब आपका आंसर ये नहीं, इससे थोड़ा स्लाइटली बड़ा आएगा. ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आपने सोचना चाहिए ऑप्शंस में, है ना. डेसिमल शिफ्टिंग वगैरह हम सीख चुके हैं, वैसे हम लोग कर सकते हैं. और ऑब्वियसली इसका यूनिट आएगा मोल्स पर केजी. मोलालिटी पूछा है तो मोल्स पर केजी. सो विद दिस वी हैव सीन हाउ
there are various ways of expressing concentration, right from normality, molality, then we have also seen percentage. उसमें 3 types आते हैं, percentage, weight by weight, weight by volume, volume by volume, and then mole fraction और parts per million. These are various ways of expressing concentration. उसके कुछ sums हमने लिए, आप practice करो, और you can send me your reply in the comment box. Don't forget, अगर कोई doubt रहेगा तो पूछ सकते हैं, मैं personally उनको अपना नंबर भी दे दूंगा. और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.